آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا اس میں ایک ہی ساتھ دو موضوع تھا۔ ایک موضوع استغفار کی فائدے اور دوسرا موضوع تھا درود شریف کے فائدے، لیکن چونکہ جمعہ کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے اس لیے میں نے پھر ارادہ کیا کہ آج کے جمعہ میں صرف ایک ہی موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ تو آج کا اس موضوع جو ہے میرے سامنے وہ موضوع ہے درود شریف کے فائدے۔ یقیناً ایک انسان دنیا کے اندر جب کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کام کرنے میں اسے اس وقت زیادہ دلچسپی معلوم ہوتی ہے جب وہ اس کے فائدے کو جانتا ہے۔ ہم آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اس وقت تک کرنے سے ہم پیچھے رہتے ہیں جب ہمیں اس کا فائدہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب فائدہ معلوم ہو جاتا ہے تو ہر انسان کے اندر دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ کام ہم کیسے کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں مل جائے۔ آج کے اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان اس قدر بیجی اور ویست ہو چکا ہے کہ انسان بہت ہی کم اللہ کو یاد کر پاتا ہے یا کر رہا ہے۔ انسان بہت ہی کم ذکر و اذکار یا استغفار یا درود شریف بہت ہی کم پڑھ پاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو نماز میں جب آتے ہیں تو نماز میں جب وہ رہتے ہیں تو نماز کے وقت وہ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن بس اسی پر ان کا اکتفا ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں اسے بہت کم سمے ملتا ہے یہ سارے کام کرنے کے، ذکر و اذکار کرنے کے، استغفار کرنے کے، درود شریف کرنے کے۔ کرتے بھی ہیں تو بہت کم کرتے ہیں یا پھر کرنا بھول بھی جاتے ہیں۔ اور جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو پھر نماز میں بھی ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں، درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی بڑے نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز کا پابند بن جائیں، پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نسخہ ہمارے لیے جو بتایا ہے ان نسخوں پر عمل کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ یقیناً ذکر و اذکار کے، درود شریف کے اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ سارے فائدے ہمیں اس وقت ملیں گے جب ہم پہلے نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل ہمارا کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اور اس بات کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے نماز پڑھنا ہمارے لیے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں، نماز کے پابند ہو جائیں، پھر اس کے بعد دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچنے کے لیے اور دنیاوی اور اخروی جو فائدے ہیں ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے ان طریقوں پر ہم چلیں اور ان طریقوں کو ہم اپنائیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہر انسان کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے اور لازمی عمل بھی ہے۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، نبی کے اوپر درود بھیجنے کا، اور خصوصاً آج کا دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے
मखसूस फरिश्ते हैं जो हमारे दरूद को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने दरूद पढ़ने के लिए कहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत करीमा कुरान की आयत है, और हर जुमा आप खुतबा में इस आयत को सुनते हैं। हर जुमा ये आयत खुतबा के अंदर पढ़ी जाती है। यकीनन अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने नबी की तारीफ बयान फरमाता है, और फरिश्ते नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो तुम भी उस नबी के ऊपर दरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और तुम कसरत से तुम उस नबी के ऊपर सलाम भी भेजो। अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया। दरूद कितना अहम है कि मोमिनों को हुक्म देने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना भी नाम जिक्र किया और फरिश्तों का भी जिक्र किया। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला भी नबी की तारीफ बयान करता है फरिश्तों के सामने। व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। इसलिए ए मोमिनो तुम भी उस नबी के ऊपर दरूद भेजो, और तुम बहुत ज्यादा उनके ऊपर सलाम भेजो। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम के बारे में तो हमें पता है, मालूम है, लेकिन अल्लाह के नबी हमें ये बता दीजिए कि दरूद हम कैसे पढ़ें, दरूद कौन सा है, किस तरह हम दरूद पढ़ें। सलाम पता है, आप नमाज पढ़ते हैं, तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो अल्लाह के नबी सलाम के बारे में हमें पता है, दरूद के बारे में हमें बता दीजिए। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद, जितने भी दरूद हैं, तमाम दरूद में सबसे बेहतर और सबसे अफजल दरूद ये दरूद है। और क्यों ना हो, जो दरूद नबी के मुबारक जबान से निकला हो, और जिस दरूद को अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखलाया हो। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम इस दरूद को याद कर लें, इस दरूद को हम हिफ्ज कर लें, और इस दरूद को चाहे नमाज में हो या गैर नमाज में, जब कभी हो, एनी टाइम, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, हर हमेशा हम दरूद पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी दुआएं भी याद हो जाएगी, ये दरूद भी याद हो जाएगा। आज का ये खुतबा और हर जुमा का खुतबा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मोबाइल में आ जाता है, यूट्यूब में आ जाता है, आप बाद में भी सुन सुन के याद कर सकते हैं। अब आइए जरा हम फायदा उसका बता रहे हैं कि दरूद पढ़ने के फायदे क्या हैं। और फायदा बयान करने से पहले ना पढ़ने का एक नुकसान भी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। पढ़ने के तो जो फायदे हैं वो फायदे है ही है, बहुत ज्यादा फायदे हैं, और ना पढ़ने का नुकसान है। मशहूर हदीस है, आपने बारहा वो हदीस सुन चुका होगा, बारहा उस हदीस को आपने सुना होगा। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे और 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने आमीन कहा था। पहले सीने पे कदम रखा, अल्लाह के नबी ने आमीन कहा, दूसरे सीने पे कदम रखा, फिर अल्लाह के नबी ने आमीन कहा, फिर तीसरे
जीने पर कदम रखा, फिर अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले तो आपने कभी भी ऐसा नहीं किया था, नहीं कहा था, लेकिन आज खिलाफे मामूर आप जब मिंबर पर चल रहे थे, 3 जीने पर आपने कदम रखा और 3 मर्तबा आमीन कहा। आखिर अल्लाह के नबी बात क्या है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा, जिब्राइल अमीन आ गए। ये जिब्राइल फरिश्ता, ये सैयदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों का सरदार, ये जिब्राइल आके मुझे कहने लगा कि ऐ नबी, जो शख्स रमजान मुबारक का महीना पाए और रमजान का महीना पाने के बाद रमजान के रोजे को रख करके अपने गुनाहों को ना बख्शवा पाया, उस पर अल्लाह की लानत है। उस वक्त मैंने कहा आमीन, यानी ये अल्लाह तू इस दुआ को कबूल फरमा ले। नबी ने कहा आमीन, फरिश्ते ने बद्दुआ की और नबी ने कहा आमीन, अल्लाह तू इस दुआ को कबूल कर ले। फिर जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा, फिर जिब्राइल ने आके कहा कि नबी, जो शख्स अपने बुढ़ा माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके अगर उसने जन्नत हासिल नहीं की तो उस पर भी अल्लाह की लानत है, वो भी अल्लाह की रहमत से दूरी है, उसके लिए तबाही है, बर्बादी है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फिर कहा आमीन, यानी अल्लाह तो कबूल कर ले। और तीसरी मर्तबा जब मैंने आमीन कहा, जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी तेरा नाम आए, जब भी मोहम्मद का नाम आए और मोहम्मद का नाम आने के बाद अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, उस पर भी अल्लाह की लानत है, उसके लिए भी अल्लाह की रहमत से दूरी है, उस पर अल्लाह की लानत है। तो ये 3 बद्दुआएं की किसने की? जिब्राइल फरिश्ता ने, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। और आमीन किसने कहा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जरा हम गौर करें, जिस दुआ को जिब्राइल फरिश्ता कहे और जिस पर नबी ने आमीन कहा हो, वो क्या दुआ कभी रद्द हो सकती है? वो कभी भी रद्द नहीं हो सकती है, बल्कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता। तो ये है ना करने के नुकसानात। अब करने के फायदे देखिए। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन। अबू हुरैरा बयान का सही कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स मेरे ऊपर 1 मर्तबा दरूद भेजेगा, 1 बार बस, जो शख्स मेरे ऊपर 1 मर्तबा दरूद भेजता है, तो उसके ऊपर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है। बंदा 1 बार दरूद भेजता है और अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अगर अल्लाह की 1 रहमत उसके ऊपर नाजिल हो जाए किसी भी बंदे के ऊपर, तो 1 रहमत, अल्लाह की 1 रहमत का इतना पावर है कि दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और यहाँ 10 रहमतें नाजिल होती है 1 मर्तबा दरूद पढ़ने से। अगर 2 मर्तबा दरूद पढ़ लेता है, 20 मर्तबा रहमतों का नज़ूल होता है। 3 बार पढ़ता है, 30 मर्तबा अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। जितनी मर्तबा पढ़ता है उतना ही 10-10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती है। एक दूसरी हदीस देखते हैं, सहीहुल जामे की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं। और इस हदीस के अंदर 3 फायदे दरूद पढ़ने के, 3 फायदा बयान किया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन, जो शख्स मेरे ऊपर 1 मर्तबा दरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वहत्ता लो अशर सय्यातिन, और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। वरफा अशर दरजातिन, और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जा को बुलंद फरमा देता है। 1 मर्तबा दरूद पढ़ता है, 3 फायदा। पहला फायदा 10 रहमतों का नज़ूल होता है उसके ऊपर।
फिर अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। और तीसरा फायदा, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जा को बुलंद कर देता। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बार दरूद पढ़ने का इतना बड़ा फायदा, तो अगर कोई शख्स 10 बार दरूद पढ़ेगा उसका कितना बड़ा फायदा होगा। आइए देखते हैं 10 मर्तबा दरूद पढ़ने का क्या फायदा है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस भी सहीहुल जामे की हदीस है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसिहु अशरन अदरकत व शफाअती यौमल क़ियामा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स सुबह के वक्त मेरे ऊपर 10 मर्तबा दरूद पढ़ेगा, दरूद भेजेगा या दरूद भेजता है, और शाम के वक्त भी जो शख्स मेरे ऊपर 10 मर्तबा दरूद भेजता है, तो क्या होगा, अदरकत हो शफाअती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के हौलनाक दिन में वो मेरी शफाअत का मुस्तहिक हो जाता, मेरी शफाअत का मुस्तहिक बन जाता है। और आपको पता है कल क़यामत का दिन कितना हौलनाक दिन होगा कि कोई भी नबी सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इस तरह परेशान हाल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई भी सिफारिश नहीं करेंगे। हर एक नबी इनकार कर देंगे, हमसे नहीं हो सकता इस सिफारिश करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त मेरे ऊपर 10 मर्तबा दरूद भेजता है और शाम के वक्त 10 मर्तबा दरूद भेजता है, तो कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार बन जाता है, मेरी शफाअत का मुस्तहिक बन जाता है। कल क़यामत के हौलनाक दिन में मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा, ये मेरे लिए गारंटी है। अब आइए एक और हदीस देखें, सुनन तिरमिज़ी की हदीस। इस हदीस के अंदर देखिए दरूद पढ़ने के क्या फायदे हैं। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जबरदस्त फायदा बयान फरमाया। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ऊपर ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, कसरत से दरूद पढ़ता हूँ। तो कितना दरूद पढ़ूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ऊपर ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, इसमें आपका क्या ख्याल है? आप हमें बताइए, मैं कितना दरूद पढ़ूं? यानी मैं जो दुआ मांगता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो दुआ करता हूँ तो आपके ऊपर भी मैं दरूद पढ़ता हूँ, तो मैं कितना दरूद पढ़ूं आपके ऊपर? ऐसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? आप बता दीजिए, आप मैं कितना दरूद पढ़ूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माशिता फइन जित्ता फहुवा खैरुल लक, कि तुम जितना चाहो, लेकिन अगर तुम ज्यादा करो तो ये तुम्हारे लिए ही ज्यादा फायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं ये करता हूँ, 3 हिस्सा अपने लिए दुआ करता हूँ और 1 हिस्सा मैं सिर्फ और सिर्फ दरूद ही पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, माशिता वइन जित्ता फहुवा खैरुल लक, कि तुम जो चाहो उतना पढ़ो, और अगर तुम इससे भी ज्यादा करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए ही ज्यादा बेहतर है। उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये करता हूँ कि फिर 50-50 कर देता हूँ, आधा मैं दरूद पढ़ता हूँ और आधा मैं अपने लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माशिता फइन जित्ता फहुवा खैरुल लक, तुम जो चाहो उतना पढ़ो, लेकिन अगर तुम और ज्यादा करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए और ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी, तो फिर मैं ये करता हूँ कि 3 हिस्सा दरूद पढ़ता हूँ और एक हिस्सा मैं दुआ करता हूँ और 3 हिस्सा में दरूद पढ़ता हूँ। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माशिता फइन जित्ता फहुवा खैरुल लक, तुम जो चाहो पढ़ो, लेकिन अगर और ज्यादा करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा। अल्लाह के नबी, मैं कितना पढ़ूं? 3 हिस्सा पढ़ता हूं, फिर भी आप कहते हैं कि अगर तुम और ज्यादा करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के नबी, तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं पूरा दुआ में दरूद ही दरूद पढ़ता हूँ, मैं पूरा मुकम्मल दरूद ही पढ़ता हूँ। इसमें आपका क्या ख्याल है? नबी ने फरमाया कि जब तुक
युगफर लका ज़ंबुक, तब तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियों को, तुम्हारे सारे गमों को, तुम्हारे सारे मुश्किलात को भी दूर फरमा देगा और तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह ताला बख्श देगा। इज़न तुकफा हम्मक व युगफर लका ज़ंबुक, तब तो तुम्हारा सारा काम ही खत्म है, तब तो तुम्हारा सारा समस्या ही खत्म हो गया। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी को भी दूर फरमा देगा और तुम्हारे गम को भी दूर कर देगा, तुम्हारी परेशानी को भी दूर कर देगा और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये दरूद पढ़ने के फायदे हैं। हम जब तक हमें इसका फायदा पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तब तक हम उसके फायदे को ना जानने की वजह से हम दरूद शरीफ से पढ़ने से महरूम हो जाते हैं और हमारा इस तरफ ध्यान भी बहुत कम रहता है। एक वाकया बयान किया जाता है जो अरब का वाकया है, ये बहुत पहले का वाकया है कि एक आदमी बीमार हुआ था, उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया। जब ऑपरेशन उसका हुआ, ऑपरेशन होने के बाद फिर देखते हैं दोबारा जब डॉक्टर उसे देखते हैं दूसरे दिन, तो क्या हुआ, उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। फिर वो ब्लड निकल रहा है, जहाँ से ऑपरेशन हुआ वहां से ब्लड निकल रहा था। डॉक्टरों को खबर दी गई, सारे डॉक्टर आए, डॉक्टरों की टीम आई, देखा डॉक्टरों ने वो भी घबरा गए, ये कैसे हो सकता है, हमने इतने बेहतरीन से इसका ऑपरेशन किया है फिर कामयाब क्यों नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा, फिर यही डिसीजन लिया कि दोबारा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया और उस आदमी से कह भी दिया कि अब तुम्हारा दोबारा ऑपरेशन होगा। बड़ा घबराया आदमी कि एक बार ऑपरेशन हुआ है फिर दोबारा होगा, अब पता नहीं मेरी हालत क्या होगी, पता नहीं जिंदगी और मौत का सवाल है, फिर मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चुनांचे वो भी बड़ा घबराया और डॉक्टर भी परेशान है। फिर वो गए अपनी तैयारियों में लग गए। इधर जो उनके उस हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वो नर्स आती है उसके पास और उसे कहती है या साले सल्ले अलैहि, ऐ साले क्या देखता है, दरूद पढ़। चुनांचे वो बीमार आदमी जिसको ऑपरेशन हुआ था अब कसरत से वो दरूद पढ़ने लगा, कसरत से वो दरूद पढ़ने लगा, लगातार दरूद पढ़ रहा है, लगातार दरूद पढ़ रहा है। फिर जब दोबारा डॉक्टर जब उसके पास आए ऑपरेशन करने के लिए, क्या देखते हैं कि उसका खून आना बिल्कुल बंद हो चुका है। क्योंकि उन्होंने उसकी जो पट्टी की थी, उस पट्टी को जब उन्होंने खोला तो देखा कि अंदर भी खून नहीं है और फिर वो जख्म बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब ही है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये दरूद शरीफ पढ़ने के फायदे हैं और बहुत सारे फायदे हैं दरूद शरीफ पढ़ने के। इसलिए हमको आपको चाहिए कम ज्यादा से ज्यादा दरूद का एहतमाम करें। और खुसूसन आज का दिन जो है ये जुमा का दिन है, जुमा के दिन भी हमें कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल की मुकम्मल इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी के ऊपर दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।